We'd like to ask where the money's going. What was this money spent on? 1.26 million. What was that money spent on? There aren't any kids. We want to build trust, but fraud is fraud, so why should we be enabling fraud to happen here? No, I don't think anybody is enabling fraud to happen. Hold Governor Walz accountable for this. वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अमेरिका में सबसे बड़ा फ्रॉड जो एक्सपोज हो चुका है। दोस्तों ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि एक कंट्री की जीडीपी के बराबर स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है टैक्स पेयर मनी के साथ। Two of these child care centers, they're pulling in about $3 million a year, and there are no children. Every facility you go to, the windows will be blocked out so you can't see in. There's nobody here. You won't see a single child at any of these facilities. और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है जितने भी टैक्स पेयर हैं अमेरिका में, अब आप चाहे यूएस सिटीजन हो, ग्रीन कार्ड होल्डर हो, लीगल रेजिडेंट हो या फिर इलीगल हो, लेकिन आप टैक्स पेयर करते हो, तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद आग बबूला होने वाले हो। एक यूट्यूबर, उनकी एक वीडियो ने फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को काम पे लगा दिया है। There are indeed no windows. All the windows are blacked out right here. All right, let's go in. And the child care center is locked. Should we ring the doorbell? Try to get in, rang the doorbell. Nobody showed up. They're open 7 days a week, 7 a.m. to 10 p.m. it says here on their sign, yet there's absolutely nobody here. And this building here, right here, has generated millions of dollars, and it seems like business isn't even open right now, and it's a weekday. इनका नाम है निक शर्ली। आप इनकी वीडियो जाकर देख सकते हो। जिस तरह से इन्होंने, एक शख्स हैं जिनका नाम है डेविड, उनके साथ मिलकर ये पूरा फ्रॉड मिनेसोटा में जो हो रहा था, चाइल्ड केयर सेंटर्स, हेल्थ केयर सेंटर्स और ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज का मिली भगत, इन्होंने पाया कि वहाँ पर चाइल्ड केयर सेंटर में कोई चाइल्ड ही नहीं। जो ट्रांसपोर्टेशन की जो वैन्स थी वो वैसी की वैसी खड़ी हैं। हेल्थ केयर जो सेंटर्स थे, एक ही बिल्डिंग में 14 से ज़्यादा बिजनेसेस, 14 से ज़्यादा नाम। Oh, another major piece of the fraud is the home health care industry. Where we're going now is a building that has 14 Somali-owned home health care companies in the same building. और जब इन्होंने वहाँ के लोकल से बात की तो वहाँ के लोकल भी कहते हैं कि ये जो चाइल्ड केयर सेंटर है, यहाँ पर कोई उन्होंने बच्चा देखा ही नहीं। वो 2017 से वहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने आज तक कोई बच्चा ही नहीं देखा। Ever seen children at that daycare center right there? Where? Yeah, it's right there. It says the child. You've never seen daycare. I haven't seen anybody in here. We're going to educate you on something. So what do you think about this daycare center? They spelled learning wrong. They've received over $1.9 million this year alone, and they're supposed to have 99 children here. I don't see it. Children. Have you ever seen any children here? None at all. None. This year they got 1.9 million. Last year they got 1.5 million of your tax money for 99 children. We just want to know, where are the kids? Right. Where are the children? I don't see them. I've been here since 2017. I haven't seen anybody like Never that here. seen a child here. No, not at all. दोस्तों देखो कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा था। और इस पूरे स्कैम में दोस्तों सोमालियन इमिग्रेंट जो हैं, सोमालियन अमेरिकन जो हैं, वो कटघरे में खड़े हो चुके हैं। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम, उन्होंने वीडियो तक डाल दी है। ये जब यूट्यूबर जो थे निक शर्ली, इन्होंने जब वीडियो डाली, उसके बाद फेडरल जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव हो चुकी है और फेडरल एजेंट्स मिनेसोटा में जाकर, मिनियापोलिस में जाकर, ऐसी सभी जगहों पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि क्या वाकई में ये फ्रॉड चल रहा था अभी तक। और ये 1 साल का फ्रॉड नहीं, 2 साल का नहीं, करीब 9 साल का फ्रॉड, बिलियंस ऑफ डॉलर, करीब $9 बिलियन की बात हो रही है, जो कि बराबर है सोमालियन कंट्री की जीडीपी के बराबर। So, where are the kids? Where's anybody? How can there be nobody here? And it's like this every single day. I've never seen a single child here. In 9 years, I've never seen a single child at this building. इतना बड़ा स्कैम हुआ है अमेरिकन टैक्स पेयर के साथ। और हर जगह ये जो यूट्यूबर है निक शर्ली, जितने भी आप न्यूज़ चैनल खोल के देख लो, इनको प्रेज़ किया जा रहा है और इनके बारे में बात की जा रही है कि इन्होंने एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होकर एक ही वीडियो में इतना बड़ा खुलासा कर दिया, जबकि जो डेमोक्रेटिक गवर्नर हैं टिम वॉल्स, वो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं कर पाए इन सब बिजनेसेस से रिलेटेड। लेकिन इन्होंने एक ही वीडियो में सबके सामने सब कुछ खोल के रख दिया। What was this money spent on? 1.26 million. What was that money spent on? Ask the owner. There aren't any kids. Ask the owner and the kids. Build trust, but fraud is fraud, so
Why should we be enabling fraud to happen here? No, I don't think anybody is enabling fraud to When are you happen. gonna hold Governor Walz accountable for this? Okay, sir. दोस्तों ये पॉलिटिकल मुद्दा तो अब बन ही चुका है, लेकिन साथ ही साथ डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है जैसे मिनेसोटा में टिम वॉल्स, उनके ऊपर बहुत बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं और इसका फ़ायदा अब उठाएंगे रिपब्लिकन पार्टी के, खास करके जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट। वो तो ऑलरेडी सोमालियन इमिग्रेंट्स के पीछे थे और अब तो उनको लीगली मौका मिल गया है इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करने का। ये जो इतना बड़ा स्कैम दोस्तों दिख रहा है सामने, क्योंकि जिस तरह से यूट्यूबर निक शर्ली हर चाइल्ड केयर सेंटर में जाकर देखते हैं, तो पहले तो ये देखते हैं कि वहाँ की जो विंडोज़ थी वो एकदम ब्लैकआउट थी, मतलब आप देख नहीं सकते अंदर कौन है। और दूसरी चीज़, एक ही लोकेशन में दो बिजनेसेस, मतलब दो चाइल्ड सेंटर एक ही लोकेशन में। We're going to a place called Mako Child Care, which actually has another child care registered at the same address called Mini Child Care Center. And how much money have these child care centers received? None of those vans have moved in 6 months. None of them. In 2020, one of them received $1.3 million. In 2021, they got $987,000. In 2022, they got $714,000. That's the last I have for that one. And then the other one, $1.604 million in fiscal year 2025. Fiscal year 2024, they got about $800,000, and in fiscal year 2023, they got $904,059. This place right here. Yes. We're outside of it. Well, this is actually 2 daycares are registered here. One of them is Mako, which you see on this sign. The other one is Mini Child Care Center. And between the two of these child care centers, they're pulling in about $3 million a year. And there are no children. Every facility as you go to, the windows will be blocked out so you can't see in. There's nobody here. You won't see a single child at any of these facilities. There are indeed no windows, all the windows. और उसके बाद चाइल्ड सेंटर में चाइल्ड ही नहीं, मतलब बच्चों की केयर के लिए सेंटर बने हैं, वहाँ पर बच्चे ही नहीं दिख रहे। और अब यही बात ख़त्म नहीं हुई, जब इन्होंने हेल्थ केयर वाले बिल्डिंग में जाकर देखा, एक ही बिल्डिंग में 14 बिजनेसेस लिस्टेड, और एक भी ये जब जाकर डोर नॉक करते हैं, वो एक भी बिजनेसेस इनको हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। जिस तरह से इन्होंने वीडियो डाली है, जिस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया है। The strangest place I've ever been to get healthcare. Just a bunch of different places. Healthcare here, healthcare right here, another healthcare company right here. There are 3 healthcare companies inside of this building right here in this room of 7C. Now we have another Helping Hands Home Care LLC, another healthcare company. One of the stranger places I've ever been. Literally, healthcare every door you go to, yet nobody will give you a rate. How much money do you think has been funneled through this building? Every year, I would say 50 to 60 million at least. तो ये तो टोटल जो फ्रॉड दिखाया गया है दोस्तों, मतलब ये आंखें खोल के रख दी हैं अमेरिकन टैक्स पेयर की। अब जो अमेरिकन लोग हैं, अब आप चाहे आप कैसे भी हो, आप लीगल हो, इलीगल हो, यूएस सिटीजन हो, लेकिन अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपको भी थोड़ा सा दर्द तो ज़रूर होगा कि यार मैं इतनी मेहनत करके टैक्स पे कर रहा हूँ और मेरा टैक्स पेयर कोई स्कैम करके इस तरह से ले गया। क्योंकि ये 1 साल 2 साल की बात नहीं दोस्तों, पिछले 9 सालों से ये चलता आ रहा था। ये जो डेविड हैं, निक शर्ली की वीडियो में जो डेविड नाम के शख्स हैं, इन्होंने अपनी रिसर्च की इस पूरे फ्रॉड के ऊपर, और अब इन्होंने ये फ्रॉड को एक्सपोज किया है। अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब DHS सेक्रेटरी क्रिस्टी नोइम, उन्होंने फेडरल एजेंट भेज दिए हैं इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये स्कैम हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह स्कैम हो रहा है, काफ़ी जगहों पर जो मैनेजर थे उन्होंने बोला भी कि हम तो भाई ओपन है, आप आकर चेक कर सकते हो। One daycare center manager calling the video dishonest. We're open Mondays through Thursdays, 2 to 10 p.m. He was here earlier. I don't see him right now. We're open. We've been open. We haven't closed. We've been open for 8.5 years now. We haven't closed once during that period. ऐसा नहीं कि हर जगह हो रहा है, लेकिन मोस्टली जो लोगों का नाम आ रहा है, जो फ्रॉड में फंस रहे हैं या फिर फंस चुके हैं, वो सोमालियन अमेरिकन, सोमालियन इमिग्रेंट्स। दोस्तों ये जो डेविड हैं, जिन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन की, अपनी रिसर्च की और निक शर्ली के यूट्यूब चैनल के थ्रू पूरे अमेरिका को ये दिखाया कि किस तरह से टैक्स पेयर का पैसा स्कैम हो रहा था। इन्होंने बताया कि मिनियापोलिस, जहाँ पर इनका ऑफिस है, उसी के आसपास काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड केयर सेंटर हैं। अब उन चाइल्ड केयर सेंटर में
किसी सेंटर में 80 बच्चे रजिस्टर हैं, लेकिन अगर आप जब उस सेंटर को विजिट करो तो एक भी बच्चा नहीं दिखाई देता। काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हैं, खास करके नॉन एमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपको किसी डेंटिस्ट के पास जाना है या फिर किसी थेरेपी के लिए जाना है, कहीं भी जाना है जो कि नॉन एमरजेंसी है, तो ज़्यादातर सोमालियन इमिग्रेंट जो सोमालियन अमेरिकन हैं उनके नाम के अंडर ये रजिस्टर हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन वैन तो है, सोमाली ड्राइवर भी दिख रहे हैं, लेकिन लोग नहीं दिख रहे जिनकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। अब इनका ऐसा कहना है। How I got involved is that where my office is here in Minneapolis, I'm sort of in the heart of all of this fraud, and I would see these child care centers. I said, well, there aren't any kids there. It's the middle of the day, and all I see are a couple of guys standing out front smoking. And then I'd go by another daycare and I'd see the same thing. I said, well, where do these kids play? And so I started to go online and look, and I said, this place is licensed for 80 children. They had 0 children. Every time I went by there, they never had a single child there. Then I started to see all these transportation companies going around, and it was always a Somali driver. And I said, well, that's great. They're out there transportation contributing, but they never had a passenger, never, ever once. And I said, well, what is all this transportation? What are they doing? So then I found out that in Minnesota, they have something called non-emergency medical transportation. So this is going to the dentist's office, therapy, whatever it might be. And I said, well, how many of these companies are there? And the research came back that there are 1,020 of them, and more than 800 of them are Somali-owned. उन्होंने पाया कि करीब 1020 ऐसे बिजनेसेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेसेस, उसमें से करीब 800 सोमालियन लोगों के हैं, सोमालियन अमेरिकन या फिर सोमालियन इमिग्रेंट आप कह लो, उनके अंदर रजिस्टर है। और इन्होंने एक और चीज़ का खुलासा किया कि एक प्रोग्राम है चाइल्ड केयर असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर फंडिंग करती है। अब ये फंडिंग इन सभी चाइल्ड केयर सेंटर में, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में, ये जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज थी इसमें जा तो रही थी, लेकिन आगे किसको ये मिल रही थी वो नहीं दिख रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्ड केयर सेंटर है, उसको हर फिजिकल ईयर करीब $1 मिलियन मिल रहा है, लेकिन जब ये वहाँ उस चाइल्ड केयर सेंटर में जाकर विजिट करते हैं वहाँ बच्चे ही नहीं। In fiscal year 2025, $1,042,059. In fiscal year 2024, $1,059,078. And in fiscal year 2023, $727,336. This next one is literally one block away, and this one's also generated nearly $3 million in the past 3 years. The windows are blacked out. This door is locked. This facility is licensed for 40 children. 0 children. I've come by this place 100 times. I've never seen a child here, ever. तो ये सारा पैसा गया किधर? क्या ये सारा पैसा जितने भी ये बिजनेसेस ओनर थे इनकी पॉकेट में गया, ये लोग तगड़ी लाइफ जी रहे हैं, या फिर ये पैसा गया सोमालिया में कुछ टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा निक शर्ली की जो वीडियो है उसमें बताया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दोस्तों स्कैम, फ्रॉड एक्सपोज हो चुका है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इवन गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दी है फंडिंग, जितने भी चाइल्ड केयर सेंटर हैं इस नाम से बने हुए, सबको अब फंडिंग फ्रीज कर दी गई है। Action announced it's freezing all child care payments to the state of Minnesota. I've activated our Defend the Spend system for all ACF child care payments across America. Starting today, we require a justification, receipt, or photo evidence before we make a payment. मानना पड़ेगा इस बंदे को, ये जो यूट्यूबर है निक शर्ली, इनकी एक वीडियो ने फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को हिला कर रख दिया है। फेडरल गवर्नमेंट अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टिम वॉल्स की, भाई उनको कटघरे पे खड़ा कर दिया कि आपके होते हुए पिछले 9 सालों से, 1 साल का तो है नहीं है, पिछले 9 सालों से होता हुआ आ रहा था, किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? इस तरह से पैसा जा रहा है अमेरिकन टैक्स पेयर का, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। और आज आकर ये जो वीडियो है दोस्तों इतनी वायरल हुई है इनकी, यूट्यूबर की, कि मतलब इससे पता लगता है दोस्तों कि यूट्यूब की कितनी पावर है। अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तक को हिला दिया, क्योंकि जब भी कभी किसी के साथ फ्रॉड होगा, गलत होगा, अमेरिका में आवाज़ उठाई जाती है। अभी आप देख लो, जो फ्रॉड करने वाले हैं वो 1 दिन बच जाएंगे, 1 साल बच जाएंगे, 2 साल बच जाएंगे। दोस्तों एक दिन ऐसा आता है, जितना भी फ्रॉड आपने किया है
उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब जो जो लोग भी फंसेंगे गए काम, लोग तो ये भी कह रहे हैं अगर वो सिटीज़न हैं तो उनको डीनेचुरलाइज करो, डिपोर्ट करो सोमालिया वापस। तो इस पूरे फ्रॉड से एक चीज़ क्या सीखने को मिलती है, खास करके जो भी इमिग्रेंट हैं जो अमेरिका में आ रहे हैं, आ चुके हैं या आना चाहते हैं, दोस्तों कभी भी स्कैम ना करें, फ्रॉड ना करें, टैक्स ना चुराएं। इतनी अच्छी कंट्री है यार, इतनी फैसिलिटीज़, इतने अच्छे राइट्स, इतनी अच्छी वैल्यू मिलती है आपको यहाँ पर, और अगर आप ऐसा स्कैम करोगे, ऐसा फ्रॉड करोगे, तो फिर तो ये वही हो गया कि इस कंट्री और बाकी कंट्री में फ़र्क क्या रह गया। तो ये बहुत बड़ा स्कैम दोस्तों इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अमेरिका में वायरल चल रहा है ये मुद्दा। तो कभी भी दोस्तों स्कैम ना करें यार। टैक्स पेयर का, किसी का, एक तरह से आप टैक्स पेयर का पैसा चुरा रहे, मतलब उसकी मेहनत का पैसा आपने स्कैम करके चुरा लिया, जो कि बच्चों पर लगना है। हेल्थ केयर, जिनको हेल्थ केयर चाहिए उनके लिए पैसा जाता है। बच्चों को जिस तरह से ज़रूरतें हैं, जो जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए पैसा जाता है। लेकिन अब ये पैसा गया किधर, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब तो आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में देन शक ऑफ फटे एंड डू सब्सक्राइब। ये है अमेरिका।